my child is average, everyone is expert in his subject. गिरते रहो पर उठते रहो और चलते रहो। मैंने जिन बच्चे के सिर पे हाथ रखा डेफिनेटली वो स्कोर कर जाएगा। आगे अंधकार है, रोशनी दिखाने का काम एक गुरु करता है। Hello everyone, let me welcome you, the team of Rang Angels, the most dynamic mentors, starting with the founder, Mr. Anurag Dikshit, director of Rang Angels, Dr. Dheeraj Manchanda, mentor and master of biology, Roshan Ranjan, maths mentor, Govind Pandey, physics, and Mayank Samria, chemistry. We have a group of amazing educators and mentors, and we are going to have a good, quick, rapid round with them with some informative and educative questions. So let's begin. So my first question to all of you is that if there was one change in the education system that you could make, एक ऐसा बदलाव जो बहुत ही ज़रूरी है, so what would that be? Right now, I'd just like to add the present system that is going on. Like the student goes to school and he comes back by 2:30, then again he have to rush for the coaching institutes. Parents are really tired of going to different institutes that they are going. So it's just by God miracles we met Anurag sir. We have the same dream basically कि it should be made some that type of hybrid and integrated coaching so that school and particularly not coaching, in school system only we can inculcate the whole thing so that parents doesn't have to rush through these programs that he have to go through the tedious exercise that he is regularly going after especially 10th class. So basically that only we are trying to create some sort of difference, and we being all the team members as owners, so we would be having much responsibility because everyone is expert in his subject. So it would be added advantage to the parents and added responsibility for us so that we can take a personal care. Nowadays what trend basically we have seen, like parents says my child is average, my child is not doing well. I, through my lot of experience in this journey, no child is average first of all, and no child is having a failure part, because the fail means first attempt in learning. It's not fail. This we have to go through the parents ki your child have not failed. It's the first attempt in learning. Once he will do that learning procedure, then only he will fulfill all the desires. 100%. So thank you so much. Absolutely lovely. Anybody else would like to add on to this? So adding to the same point, Dheeraj sir told us that whatever the students are going through right now, let's take an example. एक बच्चा जो अभी अभी स्कूल से आया है, सुबह 8 बजे से स्कूल गया हुआ है, 2:30 बजे वो घर पहुंच रहा है, उसने पता नहीं ढंग से लंच किया या नहीं किया, फिर से 3 बजे वो कोचिंग जा रहा है, घर आते हुए उसको रात में 8 बज जा रहे हैं. सो देयर इज़ नो टाइम फॉर सेल्फ स्टडी. एंड basically I'm talking about JEE and NEET. So these two exams requires lot of practice, lot of self study. So हमारा entire goal यही है कि हम बच्चों के जो टाइम स्कूल से आने जाने में एंड देन कोचिंग आने जाने में और जो ट्रैफिक से उनको जाना पड़ता है बार बार, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं. एंड उस टाइम को वी वांट कि वो अपने सेल्फ स्टडी में इनकलकेट करें. सो बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी बच्चा एक ही जगह आकर के एक ही छत के नीचे अपने बोर्ड्स, अपने जेई, अपने नीट सारी चीज़ की तैयारी करता है, और हम यहाँ पर जो सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं कि आप यहीं रहिए, यहीं पे आपके पास लाइब्रेरी की फैसिलिटी होगी, यहीं पे आपके पास सेल्फ स्टडी का ऑप्शन होगा, यहीं पे आप डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं. साथ के साथ है ना, जो भी हमारी टीम है, हमारे साथ जो असिस्टेंट्स होंगे, तो इससे फ़ायदा ये है कि हम सेम टाइम में उनको बोर्ड के साथ साथ जेई की भी लर्निंग दे सकते हैं. और ये जो जेई की तैयारी है या जो नीट की तैयारी है, बेसिकली इट्स अ प्रोसेस है ना. ये 365 × 2 टोटल 730 दिन का प्रोसेस है.
और कोई भी प्रोसेस 1-2 दिन में पूरा नहीं होता है। तो हम बच्चे को ये समझाते हैं सबसे पहले कि आप अगर 1-2 दिन भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने स्टडीज़ के साथ, अपनी जो तैयारी है उसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि दिस इज़ नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक कि आप 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन पढ़ लिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप पूरा इंटायर प्रोसेस, इस जर्नी को एंजॉय करेंगे, हमारे साथ साथ चलेंगे, हम जो कह रहे हैं उसको अगर समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करेंगे चीज़ों को, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, है ना। सो व्हेन वी से सक्सेसफुल, दैट डजंट मीन कि हम सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करके ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है अभी इंटरनेशनल लेवल पे, है ना। कई ऐसे CEOs हैं जो इंडिया के हैं एंड इवन दे डोंट हैव डिग्री फ्रॉम IITs, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस सिर्फ IIT में जाके ही हो सकते हैं। एंड वी आर हैविंग सो मच एक्सपीरियंस, हमने AIR भी दिए हुए हैं, पर हमें जो सबसे ज़्यादा अचीवमेंट लगता है वो तब लगता है जब कोई बच्चा बीइंग एवरेज सिलेक्शन लेके आता है, सिर्फ अपनी रिगरस प्रैक्टिस और मेहनत से। सो दैट्स माय पॉइंट। लवली लवली, वेरी वेल सेड। एंड ये जो कोई भी चीज़ या कॉम्पिटिटिव चीज़ है या एनीथिंग शुड बी पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल। हर एक 100% दिन right. जब वो करते हैं तो वो रिजल्ट बहुत ही मैक्सिमम तरीके से दिखता है। बहुत ही वंडरफुल सेड। सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? सर लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए। इस पे कुछ ऐड करते हुए मैं ये समझता हूँ कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम जो है ये ग्रास रूट लेवल पे वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय बच्चों के साथ। स्पेशली पोस्ट कोविड एरा हमने देखा कि फंडामेंटली बच्चे बहुत कमज़ोर हो गए। और जब मैं बोल रहा हूँ बच्चे फंडामेंटली कमज़ोर हो गए हैं तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पढ़ाई में कमज़ोर हुए हैं, वो फेलियर्स एक्सेप्ट करने में भी उतने ही कमज़ोर हुए हैं। अगर मान लीजिए हम RO यूज़ करते हैं अपने घरों में, क्यों यूज़ करते हैं? कि पानी साफ मिले। ज़मीन में ही पानी खराब हो जाएगा तो आप कितना भी बढ़िया RO लगा लीजिए, कोई काम नहीं आएगा। तो ग्रास रूट लेवल पे वहाँ काम करना इसलिए ज़रूरी है। और ये हमको बच्चों के अंदर राइट फ्रॉम लोअर केजीज या क्लास 1 से इनकलकेट करना पड़ेगा। फेलियर्स एक्सेप्ट करना। कई बार लाइफ में फेलियर्स आर नॉट रिजेक्शंस, दे आर डायरेक्शंस, दे आर द कीज। वो हमको रिजेक्ट नहीं कर रही है लाइफ कहीं और ले जाना चाहती है, बस वो आपको बता रही है कि हमको इधर जाना है। मैं बहुत एक इंस्पायर्ड हूँ MS धोनी से। और उन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप नहीं खेला, युवराज सिंह ने अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला। MS धोनी वेंट ऑन टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन द हिस्ट्री। युवराज सिंह डिडंट डू दिस, दो बहुत अच्छे प्लेयर थे, बट लाइफ ने MS धोनी के लिए उस समय रिजेक्शन रखा बिकॉज ही वॉज डेस्टिन्ड टू बी बिगर। तो लाइफ बच्चों को यही चीज़ सिखाना है करंट सिस्टम में कि कोई बात नहीं, फेल करो, बस उठो, गिरते रहो पर उठते रहो और चलते रहो। थैंक यू। और जैसा कि मैडम आपने भी बोला था कि व्हाट इज़ न्यू, तो जब ये स्कूल स्टार्ट किया ना तो पहले से एक चीज़ जरूर सोचा था कि सब सुन रहे हैं। इवन पेरेंट्स की बात पहले बताता हूँ, पेरेंट्स सुन रहे हैं JEE, नीट, CA इंटर, CA फाइनल, CS, CFA, CMA, सब सुन रहे हैं, डेफिनेटली सुन रहे हैं। उनको भी एक्चुअली रोड मैप नहीं है उनके पास। तो कहीं ना कहीं हम लोग पहले से, जब आज 25 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल सर ने जैसे बताया था कि एवरेज को हम उस लेवल पे लेके जाते हैं। हमने एवरेज को CA इंटर भी, CA मतलब CA बनाया, एवरेज बच्चों को आज डॉक्टर भी बना दिया, और एवरेज बच्चों को आज, मतलब मेरे पास एग्जांपल है, हमारा बच्चा जो है ऑलरेडी नासा में है, राइट। मेरा एक बच्चा है जो टॉप इंडिया के टॉप 100 हैकर्स में से ही इज़ वन ऑफ देम, तो ये भी है। तो ये सब क्यों है? एक्चुअली कहीं ना कहीं ये हमारे मोटिवेशन से भी जा रहा है। हम उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं। जैसे कि मैंने मेरे सारे पेरेंट्स जो क्राउड है मेरे पास, उनको पहले से बताया है कि हम न्यू क्या करते हैं। तो मैंने न्यू कॉन्सेप्ट स्कूल, इट डजंट मीन्स कि स्कूल और कोचिंग का एक मिक्सचर हो गया वो कॉन्सेप्ट स्कूल, ऐसा नहीं है। एक मिथ है, मैं जो मिथ तोड़ रहा हूँ कहीं ना कहीं, ये सब सर्स को भी बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर कोई स्कूल अपने आप को कॉन्सेप्ट बोलता है तो इट हैज़ एनी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है?
तो मैं मेरा स्कूल किस तरह से चलाना चाहता हूँ, मैं मेरे स्कूल में क्या लाना चाहता हूँ, क्या न्यू करना चाहता हूँ, मेरे पास वो कॉन्सेप्ट्स है। मेरे कॉन्सेप्ट में ये चीज़ मैंने समाई है कि मैं पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि मैं 9th ऑनवर्ड से ही, जैसा कि 9th में हमको जैसे मैथ्स का सिलेक्शन एक आता है जिसमें हायर मैथ्स लोगे या लोअर मैथ्स लोगे, तो पेरेंट्स अपने बच्चों की कॉम्पेटिबिलिटी देख के डिसीजन लेते हैं कि मेरा बेटा कहाँ जाएगा। सी पेरेंट्स को ये भी सोचना है कि हमारे पास रिसोर्स क्या है, हम क्या है, मेरा अभी सोशल स्टेटस क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें देख के पेरेंट्स को डिसीजन भी लेना चाहिए कि मेरे बच्चे को मैं कहाँ देखना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं हम उन पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि सर आप ये भी कीजिए। डेफिनेटली स्टूडेंट्स के पोटेंशियल्स को देखा जाता है, तो ये सब चीज़ें बहुत सारी हैं। तो कहीं ना कहीं हमने एक कॉन्सेप्ट ये भी सोचा कि 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड से ही ऐसा क्यों ना करें कि हम बच्चे को देखें कि कहाँ पे इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। इफ़ ही वांट्स टू गो इन मेडिकल, वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो मैं डेफिनेटली 9th ऑनवर्ड से सर लोगों को बोलूँगा कि इनको 9th ऑनवर्ड से ही इनका एक बैच ऐसा बना चाहिए जहाँ उनको नीट का डेफिनेटली वहीं से मतलब पूरा उनको गाइड किया जाए, ताकि बच्चे की 9th ऑनवर्ड से JEE का बैच अलग हो गया, नीट का बैच अलग हो गया, कॉमर्स का बैच अलग हो गया। तो बात क्या है, कहीं ना कहीं हमारा मेंटालिटी एक वर्क करता है हर एक चीज़ में। तो 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड से उनके एक मेंटालिटी हमने चेंज कर दी। जब वो जिस बैच में बैठा है, जिस रूम में बैठा है ना, वहाँ पे तो नीट वाले ना वो सब सारे डॉक्टर ही है, JEE वाले सब बैठे हैं, वो सब अपने आप में इंजीनियर्स है। वो बाद में देखेंगे कि वो कौन सा इंजीनियर बनेगा, बट उसको हम अभी से फॉर्म में ला रहे हैं कि यू आर द इंजीनियर्स एंड दिस इज योर बैच, राइट। तो वहीं से उनका पूरा रोड मैप चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम क्लासरूम में जाके जब बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तब बीइंग एन इंजीनियर आपको ये करना है, बीइंग अ डॉक्टर आपको डॉक्टर बनना है, आपको ये करना पड़ेगा। तो रोड मैप देते, वहीं से एक जर्नी स्टार्ट होती है। तो बच्चा अपने आप को 9th ऑनवर्ड से डॉक्टर अपने आप को डॉक्टर के रूप में पाता है, देखता है कि मैं डॉक्टर हूँ। तो एक्सेप्टेंस जिस दिन से आ जाता है ना, वहीं से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है। मैं बिलीव करता हूँ स्ट्रांगली, और इसी वजह से हम ये सर जो है हमारे टॉपर्स है, खुद यार रैंक है, ठीक है, और लाते हैं एज अ मेंटर, वो लोग यार क्रिएट करते हैं। डेफिनेटली गुरु के बिना तो कुछ नहीं है। जब तक गुरु नहीं खड़ा होंगे और गुरु जब तक बोलेंगे नहीं, वो जब तक उनको ज्ञान नहीं देंगे, बच्चे को रोड भी नहीं पता चलेगा कहाँ जाना है। आगे अंधकार है, रोशनी दिखाने का काम एक गुरु करता है। ये फैक्ट है। हम बच्चों को ये चीजें बताते हैं, समझाते हैं, और तब जाके कहीं ना कहीं एक प्रोपोर्शन रेशियो हमने चेंज किया है। नॉर्मल हमने ये देखा है कि क्लासरूम में क्या होता है, जैसे 40 का बैच है तो 4 बच्चे ऐसे जो दिल लगा के पढ़ रहे हैं, बाकी 36 ऐसे हैं जो उनको नहीं पढ़ना है। वो रेशियो हमने चेंज किया है। यहाँ पे 36 ऐसे जो अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी मोटिवेटेड, और बाकी के 4 जो है उन पे हमको वर्क करना है। तो वो 4 डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट स्कोर करेंगे बिकॉज वो जहाँ पे रहते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, वो सारे रैंकर बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सेल्फ मोटिवेट होता है, उसको भी मेहनत करने की इच्छा हो जाती है, और इस वजह से वो एक रेशियो जो है 100% रिजल्ट वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। और ये जो हमारा बैच होता है ना, वो जब देखो जैसे हमने बनाया पूरा बहुत बढ़िया कि 9th ऑनवर्ड से जब हम उनको इस तरह से देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल तो यही चला आ रहा है सर के, जैसे आप सबको पता है कि 6 to 10 स्टैंडर्ड्स का जो एक बेस रहता है, वो पूरा हमारा एक JEE नीट में मेन रहता है। तो हम बच्चों को 9th ऑनवर्ड से उसी चीज़ को पूरा प्रिपरेशन कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे 11th स्टैंडर्ड में आते आते तो उनका 40% JEE नीट कवर कर डालते हैं हम लोग। बाकी का जो 2 साल पूरा है हमारे पास, 1 साल में तो हम पूरी प्रिपरेशन JEE नीट की करा के लास्ट ईयर जब 12th में होता है, 12th में तो हम उनको अनलिमिटेड ये जितने भी पेपर्स होते हैं 740 720 मार्क्स के, वो सब उनको अनलिमिटेड पेपर सॉल्यूशन कराते हैं। फिर क्यों नहीं आएगा रिजल्ट? तो पेरेंट्स को इस चीज को देखना है, और हम एश्योरेंस देते हैं, यहाँ पे गारंटीड करते हैं, हम लिख के भी दे सकते हैं कि मैंने जिन बच्चे के सिर पे हाथ रखा डेफिनेटली वो स्कोर कर जाए, बिकॉज हम खुद मेंटर हैं। Yes. हम खुद ग्राउंड लेवल से बच्चों को पढ़ाते हैं, हम खुद ग्राउंड लेवल से हम खुद जाते हैं। ऑनर तो है ही हम लोग, बट बच्चों के क्लासरूम में जाके हम लोग उनको मोटिवेट भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? पूरा एरा चेंज करने के लिए बड़ौदा में इकट्ठे हुए, और वो डेफिनेटली होगा। एब्सोल्युटली, बहुत ही वेल सेड। बिल्कुल कॉन्सेप्ट स्कूल है, करेक्ट कोचिंग है,
इससे कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी और उससे बच्चों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा. 100%. मतलब एब्सोल्युटली अ टोटल पैकेज जो हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दे जाते बच्चों को हैं. एक्चुअली मैडम कुछ करना नहीं है ना, तो पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि आप कुछ करो. आपने रंग एंजल्स में रख दिया है, आप सोचना बंद कर दो. मैं बोलता हूँ क्योंकि प्लानिंग हम कर रहे हैं ना, हम उनको शेड्यूलर दे रहे हैं, हम उनको प्लानर दे रहे हैं, हम ये भी बता रहे हैं कि बेटा कौन से दिन पे आपको क्या पढ़ना है, उतना ही पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो. ये भी देते हैं. हम यहाँ पे हर एक चीज डेली डोज सिस्टम करते हैं. जैसे दवाई का डोज होता है ना मैम, जैसे हमारा पढ़ाई का भी एक डोज होता है डेली का, कि आज के दिन का डोज बेटा इतना ही है, जाते जाते ये डोज कंप्लीट करके जा, लाइब्रेरी में पढ़ के जा, नहीं समझ में आ रहा है क्वेरी सॉल्व करके जा, और फिर बाद में टेस्ट दे. टेस्ट में 100% मार्क्स आना चाहिए, बस दैट्स इट. तो ये हम चीजें बच्चों को दे रहे हैं. जो प्लानर भी हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं ये चीज हुआ मैम कि थाली सजा दिए बेटा, अब खा ले, बस इतना ही. This is exactly what we want from the education system. This support, this entire format या जो ये आपका पूरा सिस्टम है, Yes. बहुत ही बढ़िया. सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी मैम, एक्चुअली टॉपर पे हमें उतना वैसे भी वर्क नहीं करना होता है. हमें वर्क करना होता है कि एवरेज स्टूडेंट पे, कि वो एक अच्छा रिजल्ट हमें दे जाए और वही हमारा 100% रिजल्ट बनाएगा. तो हमें उसी पे वर्क करना है, बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ. Super, super, super. As we can see, we have the best and the best of educators and mentors, and what an amazing concept. ताकि बच्चा अपनी गोल्स को बहुत इजीली, और नॉट जस्ट टॉपर्स और नॉट जस्ट दो स्पेशल किड्स कि जो बहुत अच्छे करते ही है पढ़ाई में, बट एवरीवन, ईच एंड एवरी किड इज बीइंग टेकन केयर विथ फुल प्लान, फुल कॉन्सेप्ट, एंड मेक देम रेडी टू अचीव देयर गोल्स. सो what are you waiting for? बिल्कुल ही रंग एंजल्स को कनेक्ट करिए and get enrolled into this amazing format. Thank you sir, thank you. Thank you so much.